दोस्तों, today we see about vacancy in Hindustan Petroleum Corporation Limited for the post of law officer. So here we read the notification of HPCL and what is the process of applying in HPCL for the post of law officer. So we read here. This is the advertisement. So you also download this advertisement and notification from internet from Google. You write requirement in HPCL, then it's come on portal and you see. So we here discuss there is lots of vacancy in the HPCL on the post of just like for the post of executive assistant, junior executive civil, mechanical engineer, electrical engineer, civil. So there are the various posts in HPCL. So we discuss here the post of law officer in HPCL. So 3.2 serial number for law officer. Here pay scale is means per month salary is 50,000 to 1,60,000, and the vacancy for this post is only three. Post is vacant for the vacancy, and then after the maximum age is 26th year. तो आपका जो मैक्सिमम एज है वो 26 साल तक होना चाहिए, जिसमें जो क्वालिफिकेशन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज 3 ईयर फुल टाइम कोर्स इन लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 ईयर कोर्स इन लॉ आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। या तो 5 साल की आपकी BLLB की डिग्री होनी चाहिए, और या तो आपकी 3 साल की लॉ की डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन के बाद। इसमें मेनली एक चीज जो इन्होंने मांगा है वो है 1 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस किस चीज में होना चाहिए उसको भी हम आगे देखेंगे इसमें। So we saw, yeah. So this is the notification, and then after, so here we discuss about law. So we see here what is the eligibility criteria for this post. So law officer experience, yes. So the candidate should possess minimum 1 year relevant experience as a practicing advocate or working experience in a reputed law firm or legal department of a company. आपके पास 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होनी चाहिए, जो कि या तो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे हो आपकी, नहीं तो आपकी वर्क एक्सपीरियंस के तौर पे हो, अगर आप किसी लॉ फॉर्म में है या किसी लीगल डिपार्टमेंट में है तो वो होनी चाहिए। देन आफ्टर say here, relevant work experience in a company shall be reckoned post qualification of LLB, and for practicing advocate or working in a law firm, the said experience shall be conducted after enrollment in the Bar Council of India. जो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा वो आपका enrollment के बाद वाला काउंट होगा, जो आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में enrollment कराया था उनके बाद होगा। They counted after enrollment in the Bar Council of India. Experience should prevalent relate to provide advice on interpretation of contract, devising legal strategy, handling litigation, arbitration and conciliation matter, drafting of agreement, contract, drafting of pleading for filing before court, arbitrator, conciliator, ब्रीफिंग काउंसिल एक्सेट्रा। ये आपके वर्क रहेंगे वहां पे HPCL में। ये जो कंपनी है वो PSU में आती है, महारत्न कंपनी में इसका नाम आता है। सो बहुत अच्छे रेप्यूटेड पोस्ट है लॉ ऑफिसर का इसमें। Then after narrate the relevant experience should substantially cover knowledge of constitution, procedural law, petroleum law, evidence act, Indian Contract Act, Sales of Good Act, Specific Relief Act, Transfer of Property Act, Intellectual Property Law, Arbitration and Conciliation Act, environmental law, economic and commercial law like IBC, Competition Act, Consumer Protection Act, etc. इसकी आपकी नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों की। देन आफ्टर कैंडिडेट शुड पोजेस एक्सीलेंट रिटन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। आपका लैंग्वेज पे कमांड होने चाहिए। प्रोफेंसी इन रीडिंग एंड राइटिंग इन एनी ऑफ मोर शेड्यूल लैंग्वेज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, इन एडिशन टू इंग्लिश एंड हिंदी इज प्रेफर्ड। इन एडिशन द कैंडिडेट मस्ट कंप्यूटर सेवी एंड शुड पोजेस गुड नॉलेज ऑफ MS वर्ड एंड पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का आपका नॉलेज होना चाहिए, MS वर्ड का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका जो रोल है, आपको काम जो मिलेगा वो है ड्राफ्ट एंड फाइनलाइज प्लेडिंग एग्रीमेंट, वेरियस डीड एंड डॉक्यूमेंट एंड ऐड वैल्यू टू ऑल लीगल मैटर,
Develop the strategy for filing and defending cases, providing sound legal opinion, advise and respond to queries quickly, brief advocate at end court hearing, ensure court hearing भी है इसमें आपका, ensure that all cases are filed defendant will within the limitation period and there is timely submission of all pending document. अगर आपका वर्क रहेगा उसमें, अगर आप डिफेंडेंट की तरफ से हैं तो डब्ल्यूएस आपको फाइल करना होगा, अगर आप प्लेंटिफ की तरफ से है तो आपको टाइम पे टाइम लिमिटेशन के अंदर हर चीज को ध्यान रखना होगा कि कब फाइलिंग करें. Then after keep update on recent trend in the legal issue, handle arbitration conciliation cases, various verify title document, conduct review and training. Then after note में हमें देखने की जरूरत है, candidate are required to submit an experience certificate from the organization in which they are were working. अगर आप जिस जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा, देना होगा. In case of practicing advocate, the certificate should be from the state bar council and a senior advocate or a law firm accompanied with a copy of enrollment certificate with bar council. Only full-time work experience will be considered from the date of registration with Bar Council and date of joining in employment is applicable. Internship during continuation of LLB, LLM program or any other full-time studies will not be considered as experience. So हमने देखा यहाँ पे LLB के लिए प्रोसीजर. देन आफ्टर यहाँ अब हम अप्लाई का समझेंगे प्रोसीजर कि अप्लाई कैसे करें. ये आप पॉज करके भी रीड कर सकते हैं इस चीज को. देन आफ्टर यहाँ पे हम नीचे अगर आते हैं तो इसमें अप्लाई के बारे में बताया गया हमें. ये और भी पोस्ट है इसमें जो इन्होंने निकाला उस के रिगार्डिंग है. देन आफ्टर द शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस, जो शॉर्ट लिस्टिंग या सिलेक्शन प्रोसेस है इनका, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे, रिटन टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगी, सो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा. हर चीज़ के आधार पे आपका ये शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, जिसमें आपका जो क्वेश्चंस रहेगा कंप्यूटर सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रोफेशनल नॉलेज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. कैंडिडेट क्वालिफाई इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और आपको इसमें टेस्ट में पास करना होगा, फिर आपकी मेरिट बनेगी इसमें. देन आफ्टर अगर हम यहाँ पे बात करें, वो पे स्केल हमने देख लिया है कि क्या है नहीं है. देन आफ्टर प्रोसीजर को हम समझेंगे कि हाउ टू अप्लाई. यहाँ नीचे है, यहाँ पे यस एप्लीकेशन प्रोसेस समझेंगे. ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम 1 जून 2025 से 30 जून 2025 तक फॉर्म अप्लाई होगा. ये पोर्टल से ही होगा डायरेक्ट एचपीसीएल के. आप वहाँ पे जाइएगा गूगल पे, तो आपका वहीं से अप्लाई होगा एचपीसीएल के लिए. ये नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद एडवर्टाइजमेंट का जो रेफरेंस नंबर वो देखने के बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा इसमें. 1 जून से 30 जून 2025 तक के लिए फ्रेशर पोजीशन जो जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया वो उसका आप अप्लाई कर सकते हैं 30 जून तक. बट जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जैसे हमारे लॉ वाले में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो उसमें 15 जुलाई 2025 तक का इसमें डेट को इन्होंने मांगा है कि 15 जुलाई 2025 से पहले पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दें. एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा. आपका यहाँ मेंशन है www.hindustan petroleum.com पे आप जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं. फॉर्म का जो फी है, एप्लीकेशन फी है, वो आपका 1000 रुपीज है. एप्लीकेशन फी 1000 विद जीएसटी होंगे 180 रुपीज, तो आपका पेमेंट 1180 चला जाएगा. देन आफ्टर सबमिशन करने के बाद आप एक्नॉलेजमेंट नंबर जो भी आपका आएगा वो आप उसको सेव कर लेंगे. फिर जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो एचपीसीएल के वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा. थैंक यू.